Bismillahirrahmanirrahim. From Prologue to the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer, a good character, Parson. From all the ecclesiastical characters, the most beautiful and apt one and a gentle was Parson. Watch it. First, I will do reading, and after this I will explain it for you people. A good man was there of religion, and was a pure person of a town. But rich he was of holy thought and work. He was also a learned man, a clerk. That Christ's gospel straight would preach, his passions devoutly would he teach. Benign he was, and wonder diligent, and in adversity full patient. And such he was reprieved of cities, for Luth were him to curson for his cities. Whatever would he e'en out of doubt unto his pure portions bout. Of his offering and eke of his substance, he could in little thing have sufficience. What was his parish and houses for asunder, but he left not for any thunder. In sickness nor in mischief he visit the fairest in his parish, much and lit. Upon his feet and in his hand a staff, this noble ensample to his sheep he gave. That first he wrote, and afterward he taught. Out of the gospel he so words out. And this figure he add eke thereto, that if gold dust, what shall iron do? For if a priest be foul on whom we trust, no wonder is a lewd man to rust. And shame it is if a priest keep a shitten shepherd and a clean sheep. Well out a priest and sample for to F by his cleanness how that his sheep should live. He set not his benefice to her, and let his sheep encumbered in the mud, and ran to London unto St. Paul's to seek on him a chantry for size. With a brief brother had to been withhold, but dwelt at home and kept well his food, so that the wolf made it not masquerade. He was a shepherd and not a masonry. And though he holy was and virtuous, he was too sinful man not dispiteous. Neither of his speech dangerous need dying, but in his teaching discreet and benign. To driven folk to heavens by fairness, by good ensample, this was his business. But it were any a person obstinate whatsoever of high or low estate, and would he snowburn sharply for the nuns, a better priest I chose that none say yes. He waited after no prom, ni reverence, ni made him a spiced conscience.
but Christ Lord and his apostles 12, he taught and fast the followed it himself. Nice. That was a nice listening by you all people. Now we are translating it and explaining it. Let's see. Parson. Parson means clergyman. Parson means priest. Parson means rector. Parson means padri. Clear? A good man was there of religion. मजहब का एक अच्छा आदमी भी यहाँ मौजूद था. And was a first person of a town. और ये टाउन का बेचारा पुअर पार्सन था, गरीब पार्सन था, पादरी था. बट रिच ही वाज ऑफ हॉली थॉट एंड वर्क. वर्क मीन वर्क. लेकिन ये हॉली थॉट के अंदर और अपने काम के अंदर बहुत रिच था. ही वाज पुअर बाय लिविंग. ही वाज पुअर फिजिकली में भी. ही वाज पुअर इन हिज बिलोंगिंग्स, बट ही वाज नॉट पुअर इन हिज थॉट्स. He was also a learned man, a clerk. He was a scholar. He was a learned man. That Christ's Gospels, and he has read Christ की Gospel. Gospel mean actually ये उनके जैसे सिपारे होते हैं, पारे, इस तरह के Gospel. Lectures हैं actually. Gospels. Christ के lectures 20 would preach. ये Christ के 20 lectures को preach करता है. His Parsons mean worshippers, इसके followers. Parson का mean लफ्ज बार बार इस्तेमाल होगा. Parson mean है इसके follower, जिसको follow करते हैं. Devoutly would he teach, अपने followers को बहुत अच्छे तरीके से वो पढ़ाता है. Benign, kind है, he was kind था. And wonder diligent, और बहुत ही hard worker था. Diligent hard worker. And in adversity full patient. And he was full patient in his adversities. Adversity क्या होता है? जब misfortune and in adversity, जब परेशानी हो, misfortune हो, मायूसी हो, तो full patient, तो बड़ा ही साबिर साबित होता है, बड़ा ही अच्छा साबित होता है. And switch he was ye proved of sticks. Switch, और ऐसा ही वो switch such ऐसा ही साबित होता है वो, ये प्रूव होता है ऑफ स्टिक कई मौकों पर. तो कई स्टिक का मतलब, और कई मौकों पर बड़ा साबित वो साबित हुआ है. For Luth were him to Queston for his thesis. For Luth, और वो मुकम्मल तौर पर अनविलिंग साबित होता है. For him to Queston for his thesis. thesis का मतलब होता है अपनी इनकम का 10वां हिस्सा, और अपनी इनकम का ये 10वां हिस्सा था, उसको अपने पास रखने में अनविलिंग रहता था. वो 10वें हिस्से को, बिकॉज दैट वाज द रूल दैट दे put the 10th part of their money into the church maybe, or into the saints, जो बुजुर्ग का श्राइन है उसके अंदर दे देते थे. ठीक. But rather would he even given out of doubt. यकीनन वो इस पैसे को दे देता था out of doubt. कोई शक नहीं, इस पैसे को बांट देता था, तकसीम कर देता था. Unto his poor portions about, और या फिर वो पैसे तकसीम कर देता था अपने गरीब फॉलोअर्स में जो उसके मानने वाले थे. ऑफ हिज ऑफरिंग एंड वीक ऑफ हिज सब्सटेंस. ऑफ हिज ऑफरिंग, और अपनी ऑफरिंग के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, अपनी कंट्रीब्यूशन के अंदर. एंड ईट ऑफ हिज सब्सटेंस, और अपनी प्रॉपर्टी के अंदर. मीन की अपनी जायदाद में से भी वो बहुत कुछ देता था गरीबों को. He could in little thing have sufficient. He was वो अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को भी sufficient समझता था, काफी समझता था. दे देता था,
कंट्रीब्यूट करता था, दे देता था। हाँ, ऑफर करना, दे देना, पेश कर देना, कंट्रीब्यूट कर लेना। ठीक है, अगर आप उसे इबादत के सेंस में लेंगे तो नॉट अ मैटर। तो खैरात जो दे रहा है, चैरिटी दे रहा है, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब तो परफॉर्मेंस होता है ना एक्चुअली, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया है सम एज अ टर्म के हॉली राइट्स की अदायगी के लिए ऑफरिंग का इस्तेमाल करते हैं। He could in little things have sufficiency. Wood was his parish and houses for asunder. Wood was his parish और उसकी जो अपनी इबादत थी, एंड हाउसेस फॉर असाउंड, और उसके जो इबादत करने वाले थे वो बहुत दूर दूर रहते थे। पैरिश का मीन जहाँ पर वो तबलीग किया करता और जहाँ पर वो रहने वाले थे वो दूर थे। मीन के इसके फॉलोअर जो थे वो दूर दराज कहीं रहते थे। दैट इज द मीन ऑफ द होल लाइन। बट ही ने लेफ्ट नॉट फॉर राइन नी फाउंडर, बट ही ने लेफ्ट, लेकिन उसे कभी भी नहीं छोड़ा था। नॉट फॉर राइन, ना तो बारिश में छोड़ा उसने अपने फॉलोअर्स को, नी थंडर, ना ही थंडर में छोड़ा। मीन कि उसने अपने मानने वालों को, उसने अपने फॉलोअर्स को कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ा, बल्कि उनको आंधी हो तूफान हो वो अपने फॉलोअर्स के पास पहुंच जाता है, उनको मिलकर आता है, उनको चैरिटी देकर आता है, उनको तबलीग करके आता है। इन सिकनेस नॉट इन मिसचीफ, ना ही बीमारी में, अगर वो खुद भी बीमार हो तो फिर भी वो चला जाता है। बीमार भी हो, मिसचीफ, चाहे कोई भी परेशानी से क्यों ना हो, वो अपने फॉलोअर्स को मिलने जरूर जाता है, उन्हें प्रीच करने जरूर जाता है। टू विजिट द फोर्सेट इन हिज पेरिश, और वो अपने पेरिश, अपने मानने वालों को जाकर विजिट करता है। मच एंड लेट, और सबसे अहम बात है वो विजिट सबके पास करता है, चाहे रिच हो या पुअर हो। लाइट का मतलब हल्के यानी कि पुअर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको रसल ने बाद में आकर 6 सदियों के बाद कहा। उसने कहा कि जब आप लोग कहते हैं कि आप गरीबों से मोहब्बत है, तो आप कह रहे होते हैं आपको अमीरों से नफरत है। तो पार्सन वो कैरेक्टर है जेफरी चासर का, जो अमीरों के पास भी विजिट करता है और गरीबों के पास भी विजिट करता है। क्लियर? अपॉन हिज फीट एंड इन हिज हैंड आ स्टेप, और वो जाता है पैदल ही, एंड इन हिज हैंड आ यस स्टेप, और उसके हाथ में एक स्टिक होती है। इट्स नोबल इन सैंपल टू हिज शीप यस, इन सैंपल, और ये एक अच्छी एग्जाम्पल है टू हिज शीप टू यस, जो कि वो अपने शीप को देता है। मीन के उसके फॉलोअर जो है वो सारे शीप की तरह है, और वो खुद क्या है, शेफर्ड की तरह है। वो एक भेड़ों को चराने वाले चरावे की तरह है। तो वो उनके लिए, अपनी शीप के लिए अच्छी एग्जाम्पल पेश करता है। That first he wrote and afterward he taught. सबसे पहले वो राउट, सबसे पहले वो खुद उसकी प्रैक्टिस करता है, और उसके बाद फिर जाके पढ़ाता है, लोगों को बताता है कि इस तरह जिंदा रहना चाहिए। आउट ऑफ द गोस्पल ही रो वर्ड्स कॉट, और गोस्पल में से उसने कुछ लफ्ज उठाए हुए हैं, याद किए हुए हैं गोस्पल में से। एंड दिस फिगर ही एडेड ईच देयर टू, और इसमें उसने कुछ इजाफा भी कर रखा है। गोस्पल में से कुछ लफ्ज उठा के फिर इजाफा भी कर रखा है। कितनी दिलचस्प बात है ये। सच्चाई भी है, रियलिज्म भी है कि बाइबल के अंदर तब्दीलियां हुई हैं तो लोगों ने की हैं। इसके साथ एक और सच्चाई भी है कि पार्सन कहता है कि जिन्होंने गोस्पल लिखी है अपनी जगह के चंगे ने सरखा थे, तो एडे कमले ऐसी भी नहीं। कुछ इजाफा उसने भी किया है। अल्लाह ताला माफ करे ऐसे पर्सन से जो चीजों में इजाफा करते हैं। दैट इफ आई, अच्छा वो कहता है, उसमें इजाफा करके उसने लाइन बनाई हुई है, दैट इफ गोल्ड डस्ट व्हाट शुड आयरन डू। कहते हैं कि अगर सोने को जंग लग जाए तो लोहे का क्या कसूर है।
कितनी प्यारी बात की है कि अगर शेफर्ड ही अच्छा ना हो, शीप को चराने वाला भी अच्छा ना हो, तो शीप से क्या कसूर है? अगर पादरी अच्छा ना हो तो क्या एग्जाम्पल कायम करेगा, उसके फॉलोअर क्या करेंगे? सोने को ही अगर जंग लग जाए, सोने को कभी जंग लगा है? सोने को भी जंग लग जाए तो आयरन का क्या कसूर है? ठीक है। फॉर इफ अ प्रीस्ट बी फाउल, अगर एक प्रीस्ट गलत होगा, ऑन होम वी ट्रस्ट, तो किस पर इंसान करे भरोसा? नो वंडर इज अ ल्यूड मैन टू रस्ट, इसमें कोई शक नहीं है ऐसी सूरत हाल में ल्यूड मैन, ऐसी सूरत हाल में लोअर मैन यानी कि ले मैन, कामर आदमी तो फिर बर्बाद हो जाएगा, उसको जंग लग जाएगा। एंड शेम इट इज इफ अ प्रीस्ट टेक कीप, और ये बड़ी बुरी बात होगी, शेमफुल बात होगी अगर प्रीस्ट जो है वो इन बातों को ना सोचे, तो टेक कीप ना सोचे। आ शिटन शेफर्ड, सॉरी, अगर ये शेमफुल बात होगी इफ आ प्रीस्ट टेक कीप, अगर प्रीस्ट ये बात सोचे तो क्या बात, अगली लाइन है, क्या बात सोचे? आ शिटन शेफर्ड, के शेफर्ड खुद गंदा हो कोई बात नहीं, एंड अ क्लीन शीप, लेकिन उसकी शीप साफ सुथरी हो। वेल आउट अ प्रीस्ट इन सैंपल फॉर टू, यस, हाँ, प्रीस्ट को एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल कायम करनी चाहिए। by his cleanness how that his sheep should live, और उसकी एग्जाम्पलरी क्लीननेस के साथ, ये कौन है? प्रीस्ट, प्रीस्ट की एग्जाम्पलरी क्लीननेस के साथ शीप भी जिंदा रहेगी, वैसे ही फॉलो करके जिंदा रहेगी। he set not his benefits to her, और उसे he set not his benefits to her, और प्रीस्ट को कभी भी अपने बेनिफिट के लिए फॉलोअर नहीं बनाने चाहिए, उनको रोक करने के लिए फॉलोअर नहीं बनाने चाहिए। एंड लेट हिज शीप इनकम्बर्ड इन द मयर, और उसे अपनी शीप्स को इनकम्बर्ड छोड़ नहीं देना चाहिए, मयर, मयर दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर, शीप को कीचड़ में न छोड़ दे। एंड रैन टू लंदन, शीप को कीचड़ में छोड़कर लंदन भाग जाए, लंदन भाग जाए क्या करने के लिए? ऑन टू सेंट पाउल, कि मैं सेंट पाउल के श्राइन पर जा रहा हूँ ये कहकर, और वहां से क्या करे? टू सीकन हिम अ चैरिटी फॉर साउल्स, कि वो सेंट पाउल वो ये कह देता है अपनी शीप को, भाई तुम लोग यहीं पर रहो, हालात बहुत खराब हो गए हैं, तुम लोग बड़े मैले हो गए हो, तुम्हारे गुनाह हद से बढ़ गए हैं, तुम यहीं पर रहो, मैं जा रहा हूँ लंदन सेंट पाउल बड़े बुजुर्ग के दरबार पर, और वहां से तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊंगा कुछ चैरिटी, मीन कि तुम्हारे लिए मैं कुछ खास वहां से दुआ लेकर आ रहा हूँ। वो कहता है कि ये नहीं ठीक, गौर करें, गौर करें, वो कहता है ये नहीं ठीक कि अपने इलाके से बंदा भाग कर दूसरों के इलाके में पहुंच जाए खास दवा लेने के लिए, हालांकि इधर बंदे भूखे मर रहे हों। है जी, पाकिस्तान में बैठा हुआ क्रिश्चियन कहे जी मैं लंदन के चर्च में जाना है, मैंने M3 को दुआ लेने के लिए, किन के लिए? डुबनपुरा के लोगों के लिए। वो पैसे जो उसने लंदन में जाके लगाने हैं वो यहीं पर लगा दे। बातें बड़ी मैंने गहरी कर दी हैं, आप सोचें, आप बातों को ना सोचें, आप इशारों को सोचें। नहीं ये प्रीस्ट कह रहा है, हाँ यस, ये छाउंट्री लिखा हुआ लफ्ज, टू सीकन हिम और छाउंट्री फॉर साउल्स, और साउल्स के लिए वो छाउंट्री लेने के लिए। छाउंट्री क्या होता है? कवाली, भजन, गीत, मुकद्दस गीत। और विद द ब्रदरहुड टू बी इन विद होल्ड, ताकि इस बाहिमी ताउन के साथ, इस
कहते और विद द ब्रदरहुड, लंदन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, और विद द ब्रदरहुड, बल्कि आपस में बैठ के बाई मितावन के साथ टू बी विद ओल्ड, खुद ही भजन सेलेक्ट कर लो। बातें तो ठीक कर रहा है ना। उसने कहा दुनिया बड़ी बावरी, शाप दिल की बेटाई, रहमतुल्लाह अलैह, सौ सलाम करो। कहता है दुनिया बड़ी बावरी, जो पत्थर पूजने जाए है, घर की चक्की कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए है। तो जिस चक्की का पीसा खाते हो वहीं रहो ना, वहीं पर बैठ के भजन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसने कहा नहीं, मुर्शिद दा दीदार वे बाहू, मैनू लख करोड़ा जाहू, ठीक है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, क्या बात है उनकी, बड़े मुकद्दस अल्फाज कहे हैं उन्होंने, ठीक है। गौर की उन्हें पढ़ा करें, आप सारा दिन इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, उन्हें पढ़ा करें। बट but dwelt at home and kept well his food. But dwelt at home, बल्कि वो घर पर ही रहे प्रीस्ट साहब, and kept well his food, और अच्छी तरह से देखभाल करे तमाम लोगों की, so that the wolf made it not miscarry. वो घर पर रहेगा शेफर्ड, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई वुल्फ परिंदा आकर उसकी शीप को उठाकर ले जाएगा। वुल्फ इज एक्चुअली सिंबल ऑफ सैटन, कि अगर वो प्रीस्ट चल जाता है वहां पर, पीछे शीप को छोड़ जाता है, अगर शेफर्ड चला जाएगा शीप को छोड़कर, तो वुल्फ तो लाजमी शीप ले जाएगा ना, उसे नहीं जाना चाहिए। He was a shepherd and not a mercenary. भाई सीधी बात है, वो शेफर्ड है, प्रीस्ट शेफर्ड होता है, मर्सनरी नहीं होता, वो कोई डाकू नहीं होता कि वो वहां भाग जाता है और छोड़ देता है। He was a shepherd and not a mercenary, and so he holy were and virtuous. बस वो holy होना चाहिए, नेक होना चाहिए। He was to sinful men and not disputous, और किसी भी गुनाहगार से disputous, वो नफरत ना करे। जिस तरह के एक कैरेक्टर है इंडिया का, हमें क्या, गांधी, ठीक है, उसने कहा था हेट द सिन लव द सिनर्स, ठीक है। हाँ, गुनाह से नफरत कीजिए और हाँ, गुनाह से नफरत करनी है और गुनाहगार से नफरत नहीं करनी। Me of his speech dangerous and me a dying, ना ही उसकी स्पीच डेंजरस होनी चाहिए और ना ही डाइंग, और ना ही बहुत ज़्यादा हॉटी होनी चाहिए। बट इन द टीचिंग डिस्क्रीट एंड बिनाइन, बल्कि उसे अपने टीचिंग के अंदर बैलेंस्ड, डिस्क्रीट, बैलेंस, बिनाइन और काइंड होना चाहिए। टू ड्राइवन फोक टू हेवन बाय फेयरनेस, और ऑनेस्टली अपने तमाम फोक को, तमाम मखलूक को वो हेवन में ले जाए बाय गुड एग्जाम्पल, अच्छे एग्जाम्पल के साथ। दिस वॉज हिज बिजनेस, ये होता है एक प्रीस्ट का बिजनेस, और यही बिजनेस था किसका, पार्सन का भी यही बिजनेस था। बट इट वॉज एनी ए पर्सन ऑब्स्टिनेट, लगे अगर कोई शख्स ऑब्स्टिनेट, कोई विलफुल हो, कोई चाहे, व्हाट सो ही वर्ड ऑफ हाई और लो स्टेट, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो किसी भी स्टेट का हो, हिम वुड ही स्नोबन शार्पली फॉर द नन्स, हिम वुड ही स्नोबन, स्नोबन कैच करना, पकड़ लेना, शार्पली फॉर द नन्स विदाउट एनी डिले। कोई अमीर हो या गरीब हो, जब भी कोई शख्स उससे मिलता है वो फौरन उसको हेवन की तरफ ले जाता है, अच्छे कामों की तरफ ले जाता है फौरन ही, विदाउट एनी डिले। आ बेटर प्रीस्ट आई थ्रो, मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छा प्रीस्ट है, दैट नो वे नन से, यस यस एक्चुअली दैट इज, पहले वाई ये आई का काम कर रहा था, एक्स वाई जी, ये तीन लफ्ज पहले
वाउल होते थे, आज ये सेमी वाउल है। तो ये यस जो लिखा हुआ है असल में ये इज है, आई एस इज। ही वेटेड आफ्टर नो कंपनी रेवरेंस, वो कभी भी शोखी मारने के लिए, शान हासिल करने के लिए या एहतराम के लिए कभी इंतजार नहीं करता था। कभी कहीं जाकर वो ये ठहर नहीं जाता कि लोग उसका एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे तो फिर हो जाएगा। We made him a spiced conscience, spiced, और ना ही वो अपने कॉन्शियंस को, अपने ज़मीर को कभी करप्ट करता है, स्पाइस्ड करप्ट करना। बट क्राइस्ट लॉर्ड, लेकिन वो क्राइस्ट की कही हुई बातों को याद करता है, लॉर्ड उसकी कहानियों को, एंड हिज एपोस्टल्स 12, और उसकी जो 12 स्टेटमेंट्स हैं उनको याद करता है क्राइस्ट की। ही टाउट, उन्हीं को पढ़ाता है, एंड फर्स्ट ही फॉलोड इट हिमसेल्फ, और पढ़ाने से पहले खुद वो उसको फॉलो करता है। दैट वाज पर्सन, दैट वाज वेरी गुड कैरेक्टर, good religious character. That is the only religious character who is a good one, a correct one. So nice.